अस्सलाम वालेकुम क्लास। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का लेक्चर शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। आज के लेक्चर का जो टॉपिक है उससे आपको फेमिलाइज करा दूं। आज का जो टॉपिक है वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। आइए आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। फिर हम उसको डेप्थ में जाके पढ़ेंगे और फैराडे लॉ के अंदर हमारे पास फर्स्ट लॉ है, उसके बेसिकली दो पार्ट्स हैं, और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सेकंड लॉ है। उसके बाद मैं आज के लेक्चर को समराइज करूंगा आपके लिए। तो आइए समझते हैं कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन टू फैराडेज लॉ। Faraday's law of electromagnetic induction, also known as Faraday's law, is the basic law of electromagnetism which help us predict how a magnetic field would interact with an electric circuit to produce electromotive force. This phenomena is known as electromagnetic induction. Faraday law जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, ये फैराडे लॉ भी कहलाता है, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स है, फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, उसका ये बेसिक लॉज में से है। और ये लॉ एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, और उसके नतीजे में ईएमएफ इंड्यूस होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होती है, वोल्टेजेस प्रोड्यूस होते हैं। ये जो फिनोमेना है जिसके अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए से उसमें जो चेंज आता है, वेरिएशन आती है, उसके ज़रिए से जो है वो ईएमएफ इंड्यूस करते हैं किसी भी कॉइल में, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाती है। द लॉ वाज प्रपोज्ड इन द ईयर 1831 by an experimental physicist and chemist named माइकल फैराडे। माइकल फैराडे जो थे वो बहुत मशहूर एक फिजिस्ट और केमिस्ट गुजरे हैं जिनके नाम पर कैपेसिटेंस का यूनिट फैराड भी है, और इन्होंने ये इस लॉ को जो है एक्सपेरिमेंट के दौरान डिस्कवर किया। सो यू कैन सी वेयर द नेम ऑफ द लॉ कम्स फ्रॉम। आप देख सकते हैं कि नाम कहाँ से आया है इसका। इसका नाम फैराडे के नाम से लिया गया, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दैट बीइंग सेड, द फैराडेज लॉ or law of electromagnetic induction are basically the result or observations of the experiment that Faraday conducted. ये जो law है ये basically जो Faraday ने जो experiments किए थे उनका नतीजा उसने जो अख्ज़ किया, उसका निचोड़ उसने इन laws के अंदर जो है वो लोगों को बता दिया, laws की शक्ल में दे दिया उसने। आगे आते हैं और डिस्कस करते हैं। एक हमारे पास बहुत अच्छी सीबीटी है इस टॉपिक से रिलेटेड। आइए चलें उस सीबीटी को देखते हैं और बेहतर तरीके से इस लॉ को समझने की कोशिश करते हैं, फिर फर्दर एक्सप्लेनेशन भी होगी इसकी। Electromagnetic induction. In this lesson, we shall learn about electromagnetic induction. The phenomenon of electromagnetic induction can be demonstrated by an experiment. Wind an insulated copper wire on a paper or wooden cylinder so as to form a coil in the form of a solenoid. Connect the two ends of the coil to a galvanometer and place a magnet close to it. The reading of the galvanometer is 0 when the magnet is stationary. The pointer of the galvanometer deflects towards the right when the north pole of the magnet is moved towards the solenoid. The galvanometer shows 0 reading when the motion of the magnet stops. This proves that as long as the magnet keeps moving, current flows in the solenoid. If the magnet is moved away from the solenoid, current flows in opposite direction in the solenoid. Thus, the galvanometer deflects towards the left. The deflection increases if the magnet is moved away with greater velocity.
If the polarity of the magnet is reversed and the magnet is brought close to the solenoid, then current flows in an opposite direction. The galvanometer accordingly turns towards the left. Faraday observed that current flows in the coil only when there is a relative motion between the coil and the magnet. The direction of deflection in the galvanometer is reversed if the direction of motion is reversed. The current in the coil and the corresponding deflection of the galvanometer can be increased by using a strong magnet or by increasing the motion of the magnet. Increasing the area or the number of turns also creates a strong current in the coil. According to Faraday, when there is no relative motion between the magnet and the coil, the magnetic flux within the coil remains constant. So the galvanometer shows no deflection. But when the magnet is moved towards the coil or vice versa, the magnetic flux changes and an EMF is induced in the coil. If the circuit is complete, the EMF causes current to flow through it. Based on his experiment, Faraday formulated two laws of electromagnetic induction. Whenever there is a change in the magnetic flux linked with a coil, an electromotive force is induced. The magnitude of the induced EMF is directly proportional to the rate of change of the magnetic flux linked with the coil. The direction of the induced EMF depends on whether there is an increase or decrease in the magnetic flux. John Ambrose Fleming gave two rules to determine the direction of motion or the direction of induced current. While the left-hand rule is for electric motors, the right-hand rule is for generators. According to Fleming's right-hand rule, the thumb, forefinger, and middle finger of right hand are stretched perpendicular to each other. And if thumb represents the direction of movement of the conductor, forefinger represents the direction of the magnetic field, and the middle finger represents direction of the induced current. Lenz's law states that the direction of the induced EMF is such that it always tends to oppose the cause which produces it. Lenz's law obeys Newton's third law of motion, which states that to every action there is always an equal and opposite reaction. It also obeys the law of conservation of energy. It states that energy can neither be created nor destroyed. Therefore, the sum of all the energies in the system is a constant. Lenz's law is based on Faraday's law of induction. Lenz's law states that when an EMF is generated by a change in magnetic flux, according to Faraday's law, the polarity of the induced EMF is such that it produces a current whose magnetic field opposes the change which produces it. तो ये थी सीबीटी रिगार्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आइए इसको बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, फर्दर लेक्चर को लेके जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक Faraday's law of electromagnetic induction. Faraday's law of electromagnetic induction consists of two laws. तो Faraday law of electromagnetic induction है, उसमें दो तरह के laws हैं. First law describes the induction of EMF in the conductor. पहला law ये बताता है कि EMF कैसे प्रोड्यूस होती है। सही, जैसे आपके आगे ये एक सेटअप भी नजर आ रहा है, वो एक्सपेरिमेंट का जो फेरेडे ने किया था। एक कॉइल है, एक गैल्वानोमीटर लगा हुआ है, और जब
आप मैग्नेट को करीब ले जाते हैं और दूर ले जाते हैं, तो जो मैग्नेट जो फ्लक्स लिंक हुआ हुआ है आपके कॉइल के साथ वो वेरी करता है, और उसकी वेरिएशन की वजह से गैल्वेनोमीटर जो है उसके अंदर से करंट पास होता है और वो रीडिंग देता है हमें कि देयर इज सम करंट। तो वो यानी कि वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है तो करंट फ्लो कर रहा है। सेकंड हमारे पास जो है वो लॉज का जो हिस्सा है वो बेसिकली सेकंड लॉ बेसिकली उसको कहते हैं फैराडे का। वो बेसिकली ये है, वो एक क्वांटिफाइज करता है, वो एक इक्वेशन प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग द इंड्यूस्ड ईएमएफ। आइए चलें इसको आगे देखते हैं। फैराडेज लॉ का जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फर्स्ट लॉ है, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, Faraday formulated his first law of electromagnetic induction as whenever a conductor is placed in a varying magnetic field, जब कभी किसी कंडक्टर को वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यानी वो वेरी कर रही हो, कम ज्यादा हो रही हो, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, then the EMF gets induced across the conductor, तो उस कंडक्टर के अंदर EMF इंड्यूस हो जाती है, which is called the induced EMF, जो कि induced EMF कहलाती है। and if the current is if the circuit is closed, अगर सर्किट क्लोज है, the then the current will flows through the circuit, करंट सर्किट के थ्रू फ्लो करता है। ये देखिए ये क्लोज सर्किट आपके आगे लगा हुआ है, उसमें एक एम्पेयर लगा हुआ है, सेंसिटिव एम्पेयर मीटर लगा हुआ है, एम मीटर, और ये कॉयल बने हुए हैं, और जब कभी आप बार शेप मैग्नेट को जो है वो इसके करीब लेके जाते हैं और दूर ले जाते हैं, तो जो फ्लक्स होता है बार शेप मैग्नेट का इसके साथ लिंक वो वेरी करता है, और उसकी वेरिएशन की वजह से इस कॉयल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होती है, जो कि आपको एम मीटर के ऊपर उसके से करंट फ्लो करता है। इंड्यूस्ड करंट फ्लो जब करता है तो आपको इसमें इंडिकेशन आती है एम मीटर के ऊपर। ये फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ कहता है कि जब भी आप किसी कंडक्टर को वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। दिस इज द फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन कर रहा है कि फिनोमेना क्या हो रहा है। ये जो लॉ है बेसिकली ये फैराडे की एक्सपेरिमेंट जो उसने किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, उसकी जो है ना उस शख्स की भी आपके आगे ये दो लॉज मौजूद है। पहला लॉ कहता है कि जब कभी आप कंडक्टर को प्लेस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसको जब आप प्लेस करेंगे तो उसकी जो ईएमएफ है उसके अंदर वो प्रोड्यूस हो जाएगी। अच्छा, इसमें लफ्ज अपने जहन में याद रखिएगा, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, जो वेरी कर रही हो, सही है ना। वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में जब भी रखेंगे उसकी, जब आप मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करते हैं तो तब जाके उसकी वैल्यूज चेंज होती है, तो उसकी वजह से फिर उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेरिएशन आती है, तो उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होती है। कांस्टेंट अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो फिर प्रोड्यूस नहीं होगी। मैग्नेटिक फील्ड कैन बी वेरीड इन डिफरेंट वेज। मैग्नेटिक फील्ड को मुख्तलिफ किस्म के तरीकों से वेरी किया जा सकता है। बाय टेकिंग अ मैग्नेट नियर और अवे फ्रॉम द कॉइल, ये जैसे आप देख रहे हैं कि मैग्नेट को करीब ले जाएं दूर ले जाएं, उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड वेरी होती है। बाय टेकिंग द कॉइल इन और आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, या फिर आप क्या करें, अगर आप मैग्नेट मूव नहीं कर सकते तो आप कॉइल को आगे पीछे मूव कर सकते हैं, और उसकी वजह से भी ईएमएफ इंड्यूस होगी, क्योंकि फ्लक्स लिंक विद द कॉइल जो है वो चेंज होगा। By varying the area of a coil placed in the magnetic field, जो कॉयल है उसके एरिया को कम ज्यादा आप कर सकते हैं, उसकी वजह से भी ईएमएफ इंड्यूस होती है। बाय रिवॉल्विंग द कॉयल रिलेटिव टू द मैग्नेट, और या फिर आप क्या करें कि जी मैग्नेट को एक जगह रख दें और कॉयल को उसके गिर्द घुमाएं, उसकी वजह से भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। तो ये फर्स्ट लॉ था। आइए सेकंड लॉ पे चलते हैं, फैराडे के सेकंड पार्ट लॉ का, उसके फैराडेज लॉ का क्या था जी। Faraday's second law of electromagnetic induction state that, उसने क्या स्टेट किया, the magnitude of the induced EMF is equal to the rate of change of flux linkage with the coil। यानी जो मैग्नीट्यूड होता है ईएमएफ इंड्यूस्ड का, ये ईएमएफ है, ईएमएफ इंड्यूस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बराबर होता है जी द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में कितना फ्लक्स चेंज हुआ उसके बराबर, उसके प्रोपोर्शनल होता है। द फ्लक्स लिंकेज इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स एंड फ्लक्स लिंक विद दी कॉइल। फ्लक्स लिंकेज जो होता है बेसिकली वो क्या कहते हैं, वो नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करता है, और फ्लक्स लिंक विद द कॉइल ये यानी कि ये पैरामीटर यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो ये इसकी वजह से हमारे पास इक्वेशन बन जाती है ईएमएफ की, और इसमें एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स को रिप्रेजेंट करता है या लूप्स को रिप्रेजेंट करता है। माइनस साइन जो है वो लेंज लॉ की है, पहले भी समझाया आपको। लेंज लॉ बेसिकली कहता है कि जो करंट इंड्यूस होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है उस कॉज के जो उसको प्रोड्यूस करता है, तो इस वजह से
इसके साथ हम यहाँ पे इक्वेशन में माइनस साइन भी लगा देते हैं। समरी आज के लेक्चर की, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है जी, कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा तो उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी कॉइल में। फैराडे सेकंड लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ, ये मैग्नीट्यूड बताता है ईएमएफ की इन द कॉइल, वो बराबर होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि वो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी के बराबर होती है, दैट लिंकेजेस विद द कॉइल, जो लिंक करती है कॉइल के साथ, और उसमें जो एक फैक्टर है वो नंबर ऑफ टर्न्स का भी आ जाता है। तो ये थे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो फर्दर इसको डिस्कस करेंगे। आपका जो असाइनमेंट है वो ये है कि आपने आपका जो असाइनमेंट है वो ये है कि आपने जो है वो एक्सप्लेन करना है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं तो फर्दर इसको आगे लेके जाएंगे। कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।